السلام علیکم خواتین و حضرات، دنیا نیوز کی تیسری سالگرہ کی ڈھیروں مبارکباد کے ساتھ حسب حال لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم، اور میرے ساتھ ہے ناجیہ بیگ، اور ہم سب کو بہت عزیزی السلام علیکم. کیا ناظرین السلام علیکم، ہم کو سب کو تیسری سالگرہ مبارک ہو. میری سالگرہ ہے، بولو بولو نا بولو نا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. کیا بس بل پڑ جائے گا جی صاحب. ایک بات کا خیال رکھا کرو، سیلیبریشن جو ہے اس میں بھی شائستگی اور متانت ہونی چاہیے، اور اپنی عمر کا خیال رکھا کرو. جی عمر کے مطابق ہی 3 سال کی لوڈی ڈال رہا تھا. 3 سال کی. کل تم نے فلائنگ کک ماری تھی نا، بعد میں تم 1.5 گھنٹے تک زیتون کی مالش کرواتے رہے. اچھا اس لیے شو رات کو 2:45 بجے شروع ہوا. ہمیں فضول بات نہ کیا کرو ینگسٹرز کو. ناظرین جیلسی کو چھوڑ دے. اس وقت یہ دیکھے کہ یہ اپنی تیسری سالگرہ پہ اپنی نہیں، اپنی یار چینل کی سالگرہ تیسری، تو میں چینل پہ بیٹھا ہوں، میں سڑک پہ بیٹھا ہوں. اپنے خواب نہ پورے کرو. اپنی سالگرہ، اپنے چینل کی سالگرہ تیسری. یار چینل کی تیسری سالگرہ تو میری تیسری سالگرہ ہے. غصہ نہ چڑھایا کرو، تمہیں میری طبیعت کا پتا. اب اچھے رہے، اب اپنی عمر کا اندازہ ہو گیا. میرے مالک یار یہ کاٹ خدا کا خوف کرو، اپنی عمر کا خیال کیا کرو. اس عمر میں تمہیں ایسا غبارہ پھلانا پڑ جائے نا دوبارہ، تو 14 پھیپڑے چاہیے تمہیں. دیکھو یار کتنا بڑا غبارہ تھا، 1.5 گز کپڑے کا بنا ہوا. بس کرو، اب کام کی طرف آؤ. 1 منٹ ٹھہر جاؤ، تمہیں پتا. یہ دیکھو اس کو کہتے ہیں پیپڑی. اچھا بھائی، اب شو شروع کرنا ہے یا نہیں؟ اب شو کی طرف آؤ بھائی. میں گھر جا کے پیپڑیاں بناؤں گا. اچھا جی، مشاہد حسین نے کہا ہے کہ نواز شریف مسلم لیگ کے اتحاد کے لیے چودھری شجاعت کو گلے لگائیں. دوسری طرف صدر زرداری نے وزیر اعظم کو ہدایت کی ہے کہ وہ چودھری شجاعت کا ماتھا چومیں. بہت اچھے یار. چودھری شجاعت صاحب ایک معزز اور بزرگ سیاستدان ہیں. انہوں نے ان کو کیا بچہ سمجھا ہوا ہے؟ ان کی قدر کی جا رہی ہے یار. کل کو الطاف حسین فروخ ستار کو کہہ دیں گے جاؤ جی جا کے چودھری شجاعت صاحب کو کر کے آؤ. کتنا برا لگے گا آگے سے چودھری صاحب کر رہے ہو. مولانا فضل الرحمان غفور حیدری سے کہتے جائے جی جا کے چودھری صاحب کو کت کتاریاں نکال گئے. حد ہو گئی ہے یار، یہ کون سی سیاست شروع ہو گئی ہے؟ دیکھا دیکھی عمران خان شاہ محمود قریشی کو کہتے جائے جی چودھری صاحب کو جھوٹے مائیاں کر کے ہیں. چودھری صاحب بیچارے کر رہے ہیں. زور دی نہ کر دی، غصہ تینوں پیپل پارٹی تے میرے تے نہ کٹ جائیں گے. ایک خبر کے مطابق چین میں ملاوٹ شدہ دودھ بیچنے والے ایک شخص کو سزائے موت. یار یہ کس قسم کی پاک چین دوستی ہے یار؟ کیوں؟ پاک چین دوستی کہاں سے آگئی اس میں؟ وہ تو دیکھو دودھ میں ملاوٹ کیا تو بندہ ہی مار دیا چین کی گورنمنٹ نے. پاک چین دوستی کہاں سے آگئی اس میں؟ یار اگر ہمارا ایک بندہ ادھر پیدا ہو ہی گیا تو اسے مار ہی دیا یار. ہمیں واپس کر دیتے کہ بھائی جی آپ کا دانا کی گل سے آ گیا، آپ واپس لے لیں. خدا کا خوف کرو یار. ہماری حکومت اسے سزا دیتی. یہاں پہ ملاوٹ کی کون سی سزا ہے؟ ملاوٹ کی نہیں، اس بات کی سزا دیتے کہ پکڑے کیوں گئے. ماری دیا یار اسے. دیکھو امان سے آرٹسٹ کی چائنا والے قدر نہیں کرتے. آرٹسٹ یہ بھی ایک آرٹ ہے. چٹیائی بھی نہ مرے اور دودھ بھی بڑھتا جائے. وزیر قانون سندھ ایاز سومرو کے گھر کی بجلی 4 ماہ سے عدم ادائیگی کے باعث کاٹ دی گئی.
यार ये KESC ने क्या हरकत की है यार, इनको इतनी तमीज नहीं यार, ये कानून का ये एहतराम करते हैं। कानून का एहतराम क्या, बिल नहीं दिया था बिजली काट दी यार वो वजीर कानून है, कोई इतना तो ख्याल करना चाहिए, उनकी बत्ती काट दिया, पकड़ के कानून ही अंधा कर दिया। तो कानून तो अंधा ही होता है ना। इसका मतलब है KESC ने खिदमत की है कानून की। एग्जैक्टली। थैंक यू KESC, पहली दफा आपने अच्छा काम किया है। कानून अंधा होता है और वो बत्ती बाल के बैठा हुआ है। अंधे के लिए तो बत्ती बिल्कुल ऐसी है जैसे गंजे के लिए कंघी या टुंडे के लिए कड़ी। अब इधर तो नहीं ना कड़ी बांधी जा सकती। डिप्टी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब ने एक नायब कासिद की पिटाई कर दी, जिस पर नायब कासिद ने साथियों समेत डिप्टी सेक्रेटरी की धुनाई कर दी। आए ऊपर से देखो हड़ताल कर दिया बेवकूफों ने। They are very stupid people. ओह देखो यार, मैं डिप्टी सेक्रेटरी हूँ, मैंने प्यार से हमें किया है, नरम से मेरे हाथ है किताबें पढ़ने वाले, प्यार से मैंने कहा बेवकूफ, सुनते नहीं हो। बाल चला गया, सारे बड़े बड़े हाथों वाले लेके आ गए। तुम हंस रहे हो, तुम्हें नहीं पता नायब कासिद का कितना बड़ा हाथ होता है। 1.5 किलो दाल आ जाती है उसकी तली पे, 55 फाइलें तो वो 3 उंगलों से पकड़ लेता है। इतनी जोर से मारा हाय लजी, क्यों मैं इतना पढ़ लिख के डिप्टी सेक्रेटरी लगा। अगर यही कुछ होना था मेरे साथ, मैं लंडे बाजार में पुरानी जिराबें लगा लेता। वो मेरा छोटा कम से कम मुझे उस्ताद जी तो कहता। देखो यार, डिप्टी सेक्रेटरी को फैंटी लगा। डिप्टी सेक्रेटरी यार, यू नो आई एम CSS। तुम हंस रहे हो, मेरा CSS सी कर रहा है। वेरी बैड यार, वेरी बैड। मेरी सारी ब्यूरोक्रेसी पे इतनी मोटी ACR निकल आई है। मेरे अमाल का अल्लाह जी, मैं डॉक्टर के पास गया, उसने जवाब दे दिया। उसने कहा भाई जी चीफ सेक्रेटरी को चेक कराओ जाके। हाय नायब कासिद ने बड़ा जुल्म किया है। और मैं कहता रहूं, मैंने कहा बेटे मैंने तुम्हें मजाक किया है। कहता है हम भी तो सारे मजाक ही कर रहे हैं। तुम्हें क्या बताऊं, इतना चौड़ा मजाक था उसका, मियां वाली वाला मजाक। ओ मेरे बालिक, मेरी ACR ठीक हो ले जरा। मैंने सीधा चीफ सेक्रेटरी के पेश होकर कहना, खुदा के वास्ते सर नायब कासिद तो खत्म ही कर दे, होता ही खत्म कर दे। वो ये तो पुराने दौर में होते थे, कबूतरों के दौर में कासिद होते थे, क्या जरूरत है नायब कासिदों की। मैं तो अगली जनरेशन को नसीहत करूंगा कि अड़ियो नहीं CSS ना करियो नहीं, जे CSS करियो नहीं, नायब कासिद ना रखियो नहीं। जे नायब कासिद रखियो नहीं तो उधर मजाक ना करियो नहीं। मेरे मालका, मेरी ACR। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। अब हेड क्लर्क ने मुझे एक तेल दिया, उसने कहा मुझे भी फैंटी पड़ी थी तो इसी से राम आया था। यार जुनैद हमारे महल्ले में एक बाऊ इफ्तिखार, यार उसने हमें आगे लगाया हुआ है। जब भी वो बैठ के 4 बंदों में गुफ्तगू करता है, शर्मिंदा होना शुरू हम हो जाते हैं। को 17 साल वो अमेरिका रह के आया है। जब भी बैठता है हो जाता है शुरू अंग्रेजों की तारीफें करने, और कहता है जी अंग्रेज ही है जिसने आपकी जिंदगी आसान बना दी है। इजादात देखे सारी अंग्रेजों की हुई है। ये मुसलमानों ने क्या किया, स्वाय लड़ाई झगड़े के, खूंरेजी के, जंगो जदल के, इनके तारीख में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। यार ये मामला तुम्हारे सिर्फ बाऊ इफ्तिखार तक महदूद नहीं है, अपने मीडिया पे देख लो। मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो दानिश्वर हैं वो कोट पैंट टाइयां पहन के बैठ जाते हैं। जिसको 4 लफ्ज अंग्रेजी के आते हैं और 2 लफ्ज उसने हिस्ट्री के पढ़े हुए हैं, वो फौरी तौर पर ये दावा करना शुरू कर देता है कि मुसलमानों की जो तारीख है वो तो सिर्फ खून से रंगीन है, जंगो जदल और गुल गपाड़ा, घोड़े, तलवारें, इसके अलावा मुसलमानों के दामन में कुछ भी नहीं है। और जितनी सारी साइंसी इजादात हैं, साइंसी फार्मूले हैं, साइंटिफिक रिसर्च है, इल्म है, वो फौरी तौर पे सारी की सारी यूरोपीय साइंसदानों के खाते में डाल देते हैं लोग। नहीं तो बात तो ये सच्ची है, सारी बड़ी बड़ी इजादात अंग्रेजों ने की हुई है, कोई नई में कैंची ने तो नहीं की हुई। नहीं, मेरी बात सुनो, यकीनन अंग्रेजों का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है जितनी भी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं या साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं। लेकिन तुम किसी तौर पर भी मुसलमानों को जितना उनका हिस्सा बनता है, और वो बहुत नुमायां हिस्सा है, उससे तो महरूम नहीं कर सकते ना। अभी कुछ अरसा पहले एक अमेरिकी साइंटिस्ट है, मुअर्रिख भी है, J.W. ड्रैपर, और उसका पूरा खानदान साइंसदानों का खानदान है। उसने एक किताब लिखी है, द हिस्ट्री ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ यूरोप।
اس میں اس نے ایسے ایسے زبردست انکشافات کیے ہیں جو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے بڑی بڑی جو سائنسی ایجادات ہیں اس نے ان کے جتنے تصورات تھے جتنے دعوے تھے وہ بالکل پلٹ کے رکھ دیے. یعنی اس نے کم و بیش ایک اندازے کے مطابق 70 کے قریب ایسی سائنسی ایجادات ہیں, سائنسی فارمولے ہیں, سائنسی مفروضے ہیں جو اس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ یورپی سائنسدانوں کا کارنامہ ہے. آپ اس کتاب کو ذرا غور سے پڑھو تو کم و بیش 50% جو اس نے ریوائزڈ تصورات دیے ہیں وہ ان کا سارے کا سارا کریڈٹ مسلمانوں کو ملتا ہے. اچھا جی, بالکل یار, اصل میں یورپی سائنسدانوں نے مہارت یہ دکھائی ہے کہ جب اسلام کے عروج کا زمانہ ختم ہوتے ہی انہوں نے جتنی بھی یہ سائنسی ایجادات اور فارمولے تھے ان کو بڑی مہارت کے ساتھ بڑی چالاکی کے ساتھ اپنے نام سے منسوب کر لیے. مطلب عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو انسان کے ہوا میں اڑنے کا تصور ہے, یہ مشہور جو یورپی سائنٹسٹ ہے راجر بیکن, اس کو یہ کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ اس نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا. حالانکہ یہ بالکل سرے سے یہ بات غلط ہے. یہ کتاب بھی اور اب کئی ایک مغربی مفکرین بھی اس بات پر اتفاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہوا میں انسان کے اڑنے کا جو سب سے پہلی دفعہ تصور دیا تھا وہ اسلامی سلطنت جب قائم تھی اسپین میں, تو وہاں کے ایک مشہور سائنسدان اور ریسرچر ابن فرناس نے دیا تھا. بلکہ نہ صرف یہ کہ اس نے تصور دیا تھا بلکہ ہوا میں اڑنے والی ابتدائی جو مشین تھی وہ بھی سب سے پہلے ابن فرناس نے تیار کی تھی. یعنی ایک طرح کا ہوائی جہاز اس نے تیار کیا تھا اور اس نے یہ کارنامہ یہ راجر بیکن سے کم و بیش 500 سال پہلے یہ انجام دیا تھا. لو اللہ لو کہ یہ ہوا میں اڑنے کا تصور مسلمان سائنسدان ابن فرناس نے دیا تھا. اب ہم دیکھو پی آئی اے کو ابن ستیہ ناس کر رہے ہیں. اس نے جہاز اڑنے کے لیے بنایا تھا, ہم چنگے پلے اڑتے ہوئے جہاز پکڑ پکڑ کے گراؤنڈ کر رہے ہیں. اچھا جی, اس نے جو جہاز بنایا تھا اس میں بھی چوہے شوہے تھے یا کاکروچ وغیرہ؟ میں نے کب کہا کہ اس نے جہاز بنایا تھا, اس نے ایک ایسی مشین تیار کی تھی جو ہوا میں اڑنے کی صلاحیت رکھتی تھی. اس کے بعد تم یہ دیکھو کہ آئینہ, یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ وینس میں تیار ہوا تھا. یہ بھی بالکل یکسر غلط تصور ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 11ویں صدی میں بنا تھا, یعنی جس میں تم اپنا چہرہ خوبصورت دیکھتے ہو. تھینک یو. یہ بات بھی بالکل غلط ہے. یہ خوبصورت چہرے والی نہیں, یہ تصور بالکل غلط ہے آئینے کے بارے میں کہ یہ 1291 میں وینس میں استعمال ہونا شروع ہوا تھا پہلی بار. یہ 11ویں صدی سے بہت عرصہ پہلے اسپین میں مسلمانوں کے استعمال میں تھا آئینہ, اور یہ جو وینس کے جتنے کاریگر تھے انہوں نے یہ فن شام کے کاریگروں سے سیکھا تھا. اچھا, یعنی یہ نائی کی دکان سب سے پہلے شام میں بڑی تھی. یار ہنس رہے ہو, نائی کی دکان میں شیشہ لگتا ہے. اور یہ تصور بھی بالکل غلط ہے کہ 14ویں صدی تک جو مکینیکل گھڑیاں تھیں یا مکینیکل جو گھڑیال تھا یہ تیار نہیں ہوا تھا, اور پہلی بار اٹلی کے شہر میلان میں 1335 میں پہلا گھڑیال جو تھا وہ تیار کیا گیا تھا. یہ تصور بھی بالکل بے بنیاد ہے اور تاریخ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اچھا, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ابن فرناس جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اس کے بارے میں ایک مستند انگریز مورخ ہے ول ڈیورنٹ, اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 9ویں صدی میں ابن فرناس نے باقاعدہ ایک مکینیکل گھڑی تیار کی تھی جو بالکل صحیح وقت بتاتی تھی. اور یہی وہ دور تھا جب کئی مسلمان سائنسدانوں نے اجرام فلکیات دیکھنے کے لیے مختلف گھڑیال تیار کیے ہوئے تھے یا اس طرح کی انہوں نے آلات ایجاد کیے تھے جس سے وہ اجرام فلکیات کا مشاہدہ کر سکتے تھے. اور اصل کمال ان کا یہ ہے کہ یورپی سائنسدانوں نے تو اس وقت ان ایجادات پر یا ان تصورات پر اپنے قبضے کا دعویٰ کیا تھا جب یہ مسلمانوں کی جو لکھی ہوئی کتابیں تھیں 15ویں صدی میں جب ان کے لاطینی میں ترجمے شائع ہوئے ہیں, پھر جو یورپی سائنسدان ہیں انہوں نے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے ان سارے تصورات ان ساری ایجادات پر. یعنی ان ترجموں میں انہوں نے گڑبڑ کی ہے, اپنے نام بھرتی کر لی ہے. ایگزیکٹلی. اور یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, تم اپنی بھائی کی ایجادات سنو تم حیران ہو جاؤ. یہ کنوں کے چھلکے کو دورا کر کے یہ جو آنکھ میں جوس ڈالتے ہیں یہ کس نے ایجاد کیا تھا؟ کس نے؟ یہ میری لڑائی ہو گئی تھی تو میں نے بطور ہتھیار یوں ہی کیا تھا, دشمنوں کو آگے لگا دیا میں نے.
یہ جو سر کے درمیان سروں کا تیل روڈ کے ہاتھ کے ساتھ ایسے ایسے کر کے یکساں پھیلاتے ہیں تیل کو، یہ کس کی ایجاد ہے؟ مجھے کیا پتا؟ یہ کی یہ جو نلکے کی ٹوٹی لیک کر رہی ہو اور اس کے اوپر اینٹ باندھتے ہیں، یہ کس نے ایجاد کی تھی؟ کس کی؟ تمہارے چھوٹے بھائی نے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جو ہینڈ پمپ کا پانی نیچے گر جائے تو واپس جو ہاتھ رکھ کے اس کے ساتھ ایسے ایسے کر کے چھوڑتے ہیں تو پانی آتا ہے، کس نے پہلے کیا تھا؟ میں نے یار۔ اور تو اور یہ جو بوتل کے اندر نمک ڈالے تو بوتل باہر آتی ہے، کس کی ایجاد ہے؟ اور میری بوتل بھی اپنی تھی؟ بوتل بیاہ والوں کی تھی، کہیں گیا ہوا تھا شادی پہ، میٹھا میں نے زیادہ کھا لیا، وہ اوپر سے بوتل لے آیا۔ میرا زیادہ میٹھا کھانے کو جی نہیں تھا چارہ، میں نے کہا یار بوتل تو میٹھی ہے، میں نے بیچ میں نمک ڈالا تو باہر کو آ گئی، دوڑیں لگ گئی سارے جانجیوں کی، انہوں نے سمجھا پتہ نہیں بوتل چل گئی ہے۔ ویسے سر آن اے سیریس نوٹ یہ بڑی حیران کن باتیں ہیں ساری۔ ابھی کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس پر انشاءاللہ کل بھی بات جاری رکھیں گے۔ ایسے ایسے حیرت انگیز انکشافات ہیں کہ جو آج تک ہم یہی سمجھتے رہے کہ یہ مطلب اس کو انگریزوں کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ نہیں میں میری اپنی ہے یار، میں تمہیں بتاؤں گا کہیں اور چیزیں۔ ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک۔ یہ بیوی کی پھینٹی برداشت کرنا کس نے ایجاد کیا تھا؟ کس نے؟ اس کو ہی تو میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں۔ عزیز صاحب آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہے کتنی منتوں مرادوں کے بعد بس سروس شروع ہوئی تھی لاہور کے اندر، وہ اسٹوڈنٹس نے ہنگامہ رائی کر کے کل سے اب تک اس کو رکوایا ہوا ہے۔ دیکھا ہے جی، مجھے ڈاکٹر نے ٹی وی منع کیا ہوا ہے۔ دیکھا ہے نا کہ چند مٹھی بھر طالب علموں کی وجہ سے کل سے لے کر آج تک لاکھوں جو لاہور کے مسافر ہیں وہ بیچارے خوار ہو رہے ہیں صرف ان کی ہنگامہ آرائی کی وجہ سے۔ میرا خیال ہے کہ طالب علموں کو تھوڑا سا ہوش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ علی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں علامہ جنید اکاڑوی صاحب، اسٹوڈنٹس کو ہوش کا مظاہرہ کرنا چاہیے، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے آرام سے ہاتھ دیتے رہا کریں، بسیں گزرتی جایا کریں، جب سکول ٹائم ختم ہو جائے تو اسی سڑک کے دوسری طرف کھڑے ہو جائیں، ادھر سے جا کے ہاتھ دینا شروع کر دیں، پھر بسیں گزرتی جائیں، جب پھر شام ہو جائے تو پیدل گھر چلے جائیں۔ نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں، علامہ عزیزی صاحب 100% درست فرما رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ میرا نام بھی 100% ٹھیک لیا۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ طالب علموں کو یہ چاہیے کہ ایک طالب علم ڈنڈا یا بندوق لے کے کھڑا ہو جائے اور جو بس ویگن کچھ بھی رکشہ گزرے اس کو صرف گن پوائنٹ پر روک لینا چاہیے، اور ایک بس میں اگر 100 مسافروں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو اس میں 90 طالب علم زبردستی مفت سوار کروا دینے چاہیے، اور اگر کوئی بس کنڈکٹر یا ڈرائیور احتجاج کرے تو اس کو اغوا کر کے کالج یا اسکول کے اندر لے جا کر اس کو پھینٹی لگائی جائے۔ بالکل تو کہاں چلے گئے؟ بالکل تم درست کہہ رہے ہو، میں تمہاری بات سے اتفاق کر رہا ہوں۔ یار میں تمہیں علامہ کہہ رہا ہوں، تم تو علامے دینے شروع ہو گئے۔ بات کیا کر رہے ہو تم؟ بات ٹھیک کر رہا ہوں، کہاں چلے جائیں اسٹوڈنٹ؟ کون سی بات ٹھیک کر رہے ہو؟ تو بس والے بیچارے کہاں چلے جائیں؟ بس والے سڑک کے اوپر بس چلائیں، کیسے چلائیں؟ بیچ اسٹوڈنٹ ایک منٹ ہے جو تم اپنے ساری جمع پونجی جمع کر کے ایک بس خریدتے ہو اس امید اور آس پہ کہ وہ تمہیں چند پیسے تمہاری یعنی روزی کا ذریعہ بنے گی، اس پر تم ایک روٹ سے دوسرے روٹ تک جاتے جاتے اگر اس پہ 1000 مسافر بیٹھتے اور پورے سفر کے دوران اس پہ 900 جو ہے وہ طالب علم بیٹھ جائیں گے اور یہ دعویٰ بھی کریں گے کہ ہم نے 1 ٹکا کرایہ نہیں دینا، تم افورڈ کر سکتے ہو یہ بات؟ اور ساتھ تمہارے ڈرائیور اور کنڈکٹر کو مارے بھی، زد و کوب بھی کریں؟ بھائی جی 1000 بندوں میں 900 اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں، اتنے ہی ہوتے ہیں؟ حال تو دیکھو کیا ہوا۔ نہیں یہ فضول بات نہ کرو، صرف ٹرانسپورٹ تک بات رکھو۔ جن تعلیمی اداروں، ظاہر ہے کہ پورے لاہور میں پورے کراچی میں یعنی تمام شہروں میں تعلیمی ادارے پھیلے ہوئے ہیں، کیا ان اتنے زیادہ تعلیمی اداروں کی موجودگی میں کیا یہ ممکن ہے کہ آپ تمام کے تمام طالب علموں کو بغیر کسی قاعدے اور ضابطے کے مفت سفر کی سہولت فراہم کر دیں؟ یہ ممکن ہے کسی طرح بھی؟ نہیں تو کہاں جائیں اسٹوڈنٹ، یہ بھی تو بتاؤ۔ یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ سر جوڑ کر بیٹھے اور کوئی پالیسی بنائے۔ یار سارا کچھ حکومت ہی کرے بھائی، ایک روٹ پہ 300 ویگن چلتی ہے، 1000 اسٹوڈنٹ ہے، اگر 3 اسٹوڈنٹ بھی ایک بس بٹھا لے تو بچے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ اسکالر صاحب آپ بالکل وہی بات فرما رہے ہیں جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ڈسپلن کے ساتھ اگر طالب علموں کی تعداد اور وہاں پر جو اویلیبل ٹرانسپورٹ ہے اس کو دیکھ کر کوئی فارمولا بنا لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر ایک ویگن میں 2 مفت یا جو رعایت کے ساتھ سفر کر رہے ہیں 2 طالب علم بیٹھ جائے، میں تو یہ خود یہی کہہ رہا ہوں۔ لیکن اگر 12 طالب علموں کا یہی اصرار ہوگا اور وہ تشدد
तरद्दुद के साथ इस बात पर इसरार करेंगे कि हमने इसी वैगन में बैठना है 12 के 12 ने, तो क्या ये मुमकिन है? ये अलामा साहब, ये जो आप फरमा रहे हैं ना कि फार्मूला बना ये तुम्हारे, मैं तुम्हें अलामा सीरियसली कह रहा हूं, तुम तंजिया कह रहे हो। हाय हाय, तुम मुझे सीरियस कह रहे हो जी। जाने दो तुम, और मुझे अलामा कह दो। मुझे तो कोई सामने खड़े हो के साहब कहे तो मैं पिछले बंदे को कह रहा था भाई जी बुलाता नहीं पे। ये जो तुम फार्मूला कह रहे हो ना, वही मैं फार्मूला ही बना रहा हूं ना कि एक वैगन में 3 स्टूडेंट बिठा रहे तो 1000 स्टूडेंट कर भाई यही तो मैं कह रहा हूं कि कोई फार्मूला होना चाहिए, कोई कायदा होना यार, चाहिए, ये कोई ज़ाब्ता होना चाहिए। फार्मूला ही मैं बना रहा हूं बैठ के, मैं और लच्छे बना रहा हूं। तुम इधर बैठ के फार्मूला बना रहे हो ना, ये तालिब इल्मों को चाहिए, ट्रांसपोर्टर्स को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि मिल बैठकर कोई फार्मूला बनाए। अब ये कितनी मुशक्कत और मेहनत और तरद्दुद के बाद ये लाहौर में सर्विस शुरू हुई थी, और जब से शुरू हुई है अब तक 3री बार बंद हो चुकी है। यार हुकूमत को बेचारी को नहीं 3 का पहाड़ा आता, मैंने तुम्हें बता दिया ना, 3 या 9 बंदे एक बस में, और 10 ना 90 900 हो गया। मैं तो उन तालिब इल्मों के उस रवैये की बात कर रहा हूं जो इस बात पर इसरार करते हैं कि हम तमाम के तमाम जो ग्रुप है दोस्तों का, उसने इसी बस में सवार होना है, और अगर कंडक्टर या ड्राइवर इतनी जसारत कर ले कि जनाब यहां पर इस बस में पहले 4 या 5 तालिब इल्म बैठे हुए हैं, तो वो मरने मारने पर तुल जाते हैं। इसका क्या इलाज है? और तो मैं कंडक्टरों के रवैये की बात कर रहा हूं। कल्ला स्टूडेंट देख के उसको वैगन से नीचे धक्का दे देते हैं, जब 20-25 मिल के आते हैं तो उस वक्त बड़ी इज्जत कर रहे होते हैं, आओ बेटे आओ आओ। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इस कंडक्टरों के या ट्रांसपोर्टर्स के इस रवैये को कौन डिफेंड कर सकता है? तुम्हारी बातों से मैं तुम्हें अलामा कहता हूं कि तुम मेरी बात मान लेते हो। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये दिन मुझ पे कभी भी ना आए कि मैं तुम्हारी बात मान लूं। ये अभी तुमने और क्या किया, दिन दिया और ये आज क्या आया? बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि इस ये जो कल्चर है ना लड़ाई झगड़े का, इसको तब्दील करने की जरूरत है, और ये सिर्फ उसी वक्त तब्दील होगा जब आपके पास कोई कायदा या ज़ाब्ता मौजूद होगा, कोई रूल्स मौजूद होंगे। तो बसों कंडक्टरों वालों को कहो ना ज़ाब्ते कानून बनाओ, और तालिब इल्म आजाद हो जाए। तो स्टूडेंट ने जाकर बनाने हैं कायदे। तो तालिब इल्म मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हारी खोपड़ी में ये बात घुसाने की कोशिश कर रहा हूं कि तालिब इल्मों को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए। अगर एक रूट पे जितनी भी वैगन्स चलती हैं, ये मुमकिन नहीं है कि आपको आधे घंटे में छुट्टी, या जब यानी कॉलेज या स्कूल में किसी वैन ने आना, किसी स्टॉप पर आधे घंटे में आपको 50 वैगन्स या बसेस जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। मैं भी यही कह रहा हूं, इंतजार करना चाहिए। भाई मैं भी तुम्हारे इस डब्बे में जिस पे तुमने ऐनक रखी हुई है यही घुसाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो कंडक्टर और ड्राइवर हैं उनको भी कुछ तमीज अकल करनी चाहिए, वो भी स्टूडेंट के साथ बिल्कुल करनी चाहिए। और तालिब इल्मों को कुछ नहीं करना चाहिए, तालिब इल्मों को फौरन जो है वो ज़दोकोब करना चाहिए, कंडक्टर को अगवा करके स्कूल और कॉलेज के अंदर ले जाकर मारना चाहिए, ये करना चाहिए। तो तुम डिफेंड कर रहे हो, जो कंडक्टरों और ड्राइवरों ने स्टूडेंटों को कत्ल भी किया हुआ है उधर का। दूसरी तरफ तालिब इल्मों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने ट्रांसपोर्टरों के साथ भी यही किया हुआ है। दोनों तरफ एक ही तरह के अफसोसनाक वाकयात मौजूद है। तो इसी मौके पे तो दाग देहलवी ने कहा कि सापड़ू साप लड़े थे वे इसके नू चढ़े। जब कोई अकल की बात बताए उस वक्त हंसना शुरू कर देते। अकल की बात है यार, तुम कह सकते हो दाग देहलवी? नहीं, ये तुम ही कह सकते हो। सारी रात लगा के मैंने याद किया था दाग देहलवी, दाग देहलवी, दाग देहलवी। पहले मैं दाग देहलवी कहता रहा कितनी देर। जब इसे कोई दलील, कोई मंतक, कोई बात नहीं सोचती, इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। देखो, जब मेरे मुंह से फलसफा या एजुकेशन निकलनी शुरू होती है ना, ऊपर से ये बातें। अच्छा चलो तुम ईमानदारी से, जो आज हम जिस बात पर तू मैं कर रहे हैं, तुम ईमानदारी के साथ, बिल्कुल सिद्क़े दिल के साथ इसको कंक्लूड करो, चाहे मैं गलत हूं चाहे तुम गलत हो। क्या करना चाहिए? यार बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर मैंने भी महल्ले में फिरना होता है। महल्ले वाले मुझे बेइज्जत करते हैं कि यार तुम अपने से 20 साल छोटे से हार जाते हो। क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुम अपने से 20 साल बड़े से हार जाते हो। इंडिया वक्त तक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। यार ये छोटे वाली बात जरा काट दे। यार तुम मुझे एक बात तो बताओ। जी पूछो जी। तुम इतना सो कैसे लेते हो? जब फोन करो, सुबह दोपहर शाम, जब भी मैंने तुम्हें फोन किया भाभी कहती हैं सोए हुए हैं। लो जी, तुम्हारे इस फिक्रे से साफ पता चल रहा है कि तुम कितना बड़ा झूठ बोल रहे हो। ये जो तुम फिक्रा बोल रहे हो कि वो कह रही हैं कि सोए हुए हैं, यही कहते हैं। इसमें 2 फाश गलतियां हैं। क्या? हुए हैं तो उसने कभी कहा ही नहीं। वो तो हमेशा यही फरमाती है कि हुआ है। और दूसरा सो रहे हैं, ये भी एक गलती है बहुत बड़ी। तुम्हारी परजाई ने हमेशा लाड प्यार से यही फरमाया है कि मोया पे है।
हंसने वाली कौन सी बात है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, बेतकल्लफी है, मोहब्बत है, इसमें कौन सी बात है, बेतकल्लफी है। मैं तो सवेरे 4 बजे सोऊं तो 6 बजे मेरे कान में आवाज आ जाती है, किस बात की नींदरें चढ़ी हुई हैं तुम्हें। सदके जाऊं तुम्हारे 20 रुपये का हिजाब लगा के तुम क्या जवानी की नींदों के मजे ले रहे हो। चलो इस बहाने खजाब वाली बात भी खुल गई। तुम तो कहते थे नेचुरल कलर है मेरा। तो वो ट्यूब के ऊपर नेचुरल कलर ही लिखा होता है। अच्छा मेरे सवाल की तरफ तो आओ ना। मेरा सवाल ये है कि तुम हर वक्त इतना सो कैसे लेते हो? शुक्र है अल्लाह का, नींद आती है सुख सुकून की। तुम नहीं सोते, सारी रात जागते रहते हो, किताबें पढ़ते रहते हो। मेरे मालिक, वो मेरी गोली किधर गई नींद वाली। इस जैसे जितने भी पढ़े लिखे बंदे हैं ना, उनकी नींदरें उठ गई हुई है। साइंस पढ़ पढ़ के बेचारे आगे क्या क्या आ रहा है इजादात में। हाय मेरे अमाल का, अब टेलीफोन घड़ी में भी आ गया है। हो ये देखो यार, ऐनक के ऊपर वाइपर लगा दिए। ओ मेरे मालिक, मैं क्या करूं, कहां चला जाऊं, सारी रात जागते रहते। यार मेरी बात सुनो, ये जो बेखाबी का मर्ज है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो कोई मर्ज नहीं है। मैं तो जितनी देर जागता हूँ अपने काम की वजह से जागता हूँ ना। मल्ले की चौकीदारी करता रंग गोरा है ना ये, उन्होंने कहा कि यार कहां से पठान लाएंगे, इसके नाम पठान रख। फजूल बोलते जा रहा हूं। मेरी बात सुनो, पाकिस्तान में कमोबेश 5% आबादी जो है ना, वो यानी बीमारी की हद तक बेखाबी का शिकार है। और 5% कितनी बनती है तादाद वाला? यानी अगर 18 करोड़ आबादी है हमारी, तो कमोबेश 80 लाख लोग इस वक्त पाकिस्तान में ऐसे हैं जो इस बेखाबी के मर्ज का शिकार है, यानी बीमारी की हद तक बेखाबी का शिकार है। सुकून उड़ गए हैं यार दुनिया और में। हाल ही में गैलप की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान में 64% लोग जो हैं उनका ये ख्याल है कि वो अपनी नींद पूरी करते हैं, जबकि 30% लोगों का ये कहना है कि उनकी नींद पूरी नहीं होती। जो 64% लोग हैं उनमें से गालिब अक्सरियत को ये पता ही नहीं है कि पूरी नींद होती क्या है, कितने घंटे की नींद उन्हें दरकार होती है। इसलिए वो लाइल्मी के आलम में इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि उनकी नींद पूरी होती है। कम से कम 6 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे सोना चाहिए। हकीम बद परहेज फरमाते हैं। हकीम बद परहेज तुम्हारा पता नहीं तुम्हें क्या क्या बताता रहता है, लेकिन असल मसला करे, अल्लाह माफ करे, हकीम बद परहेज के खिलाफ बोल रहा है। देखो जरा, अब देखना तुम रात को उठ के ना मुझे फोन करोगे, खुदा के वास्ते मुझे वो लीले रंग की थोड़ी सी फकी दे दो, वो जो हकीम बद परहेज ने तुम्हें गिफ्ट किया हुआ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो 6 से 8 घंटे की नींद की बात है ना, ये दुरुस्त है। 8 घंटे तक साइंसदानों का कहना है कि 6 से 8 घंटे की नींद इंसान के लिए ज़रूरी है। लेकिन आज भी जो माहिरीन नफ्सियात भी और जो तिब्बी माहिरीन हैं वो इस बात पे इत्तफाक करते हैं कि जो आज से कमोबेश 20-22 साल पहले जापान में एक तहकीक हुई थी जिसमें यह बताया गया था कि इंसान के लिए दरअसल एक डीप स्लीप का जो टाइम है वो सिर्फ 20 मिनट का होता है। अगर वो आप 20 मिनट का जो अरसा है वो अगर आप एग्जैक्टली 20 मिनट में ही हासिल कर लें किसी तरह, यानी तो आपको फिर 8 घंटे तक बिस्तर तोड़ने की जरूरत नहीं फिर तुम्हें पड़ेगी। वो 20 मिनट ही नींद काफी है। लेकिन वो 20 मिनट जो है वो जो साउंड स्लीप है, डीप स्लीप है, वो अब कब हासिल करते हैं इस बात का किसी साइंसदान को नहीं पता, ना ही इंसान का उस पर कोई इख्तियार है। ये वैसे साइंसदानों ने बहुत बड़ी चाख मारी है। क्यों? और 20 मिनट तो गरीब आदमी बेचारा अपना सराहना ही दोबारा से सीधा पदरा करता रहता है। इतना पुराना उसका सराहना होता है कि रूम बेचारा डर के एक साइड पे हो गया होता है, और जहां सर आता है सेंटर में उसमें मगोरा बन गया होता है। हाँ, अलबत्ता गांव में जो मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब आदमी है वो बेचारे जल्दी सो जाते हैं। वो खूह से आते हैं खोती पे बैठ के और सीधा खोती से मंजी पे छलांग मारते हैं, और खोती और मंजी के दरमियान वो सो गए होते हैं। अच्छा, वैसे मैं तुम्हारी ये जो गलत फहमी है या मिसकंसेप्शन है आम तौर पर पाई जाती है, इसको भी दूर कर दूं कि देहातों में रहने वाले लंबी तान के सोते हैं, बहुत गहरी नींद सोते हैं। यकीनन शहरों की निस्बत वहां पर यह हालत बहुत बेहतर है, लेकिन यही गैलप सर्वे हमें बताता है कि देहातों में रहने वाले 67% जो लोग हैं वो गहरी नींद सोते हैं। शहरों में ये जो तादाद है ये 58% है। यानी फर्क है, लेकिन कोई जमीन और आसमान का फर्क नहीं है। लेकिन सर ये नींद ना पूरी होना इटसेल्फ बहुत सारी
बीमारियों की वजह है सर? ये असल में नींद ना आना और डिप्रेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नींद ना आने की वजह से बेखाबी की वजह से डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन की वजह से बेखाबी होती है, और ये जो है ये दोनों मामला मिलके जो है वो बहुत सारे अमराज जो हैं वो घेर लेते हैं इंसान को। हाय हाय हाय, ये को तो डिप्रेशन भी है और बेखाबी भी है। इसीलिए 16 घंटे की नींद है सिर्फ। तो ये भी तो अंदाजा लगाओ, अगर ये दोनों चीजें ना होती तो फिर 24 घंटे ये खराटे ही मारता। हाय हाय हाय, इसके ख्वाब देखो। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। यार तुम मेरे सोने पे भी हंस देते हो। नाज़रीन, दुनिया न्यूज की तीसरी सालगिरह के मौके पर अपने स्टूडियो में खास तौर पर दावत दी है आपके पसंदीदा किरदार जनाब नाज़िर मलिक साहब को। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम भाई, वो मुबारक हो आपको, तीसरी सालगिरह मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आपका बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपने पीएम और सीएम के बाद मुझे बुलाया, इतनी इज्जत दी मुझे। हाँ, इस्लामाबाद में पीएम साहब ने हमारी एनिवर्सरी का केक काटा है। हाँ, वो पीएम ने इंटरव्यू भी दिया यार, वो कमाल इंटरव्यू लिया उन्होंने, और इंटरव्यू देकर बाहर निकले तो मेहर बुहारी ने फिर इंटरव्यू किया भाई। वाह वाह, एक चैनल पे 2 इंटरव्यू देना बड़ा मुश्किल काम होता है। और फिर केक भी खाया उन्होंने, केक भी। जी जी, वाह वाह, बहुत अच्छे। और इधर सीएम साहब बैठे थे लाहौर में, मैं हैरान हो रहा था यार, देखो उन्होंने वो जालिब की नज़म फिर गुनगुनाई है, बाकायदा गाए वो गाए। और आपने देखा वो जब शहबाज शरीफ साहब हबीब जालिब की नज़म सुना रहे थे तो उनके साथ कौन बैठा था? वही वो बड़े मुंह वाला जो इधर बैठा होता तुम्हारे साथ। बिल्कुल वही, बिल्कुल। देखो उसकी सिट्टी गुम हुई थी, इधर बड़ा बैठ के उंगली ला रहा होता है। सीएम के सामने उंगली नहीं ली उसकी, बल्कि खुद भी नहीं लाओ। डरा हुआ था। उसका तो मुंह इतना बड़ा है, दूर से पता चल रहा होता है डरा हुआ है। अच्छा मलिक साहब, आप ये फरमाएं, आपको दुनिया न्यूज के 3 साल कैसे लगे? ऐसे बहुत अच्छे। मजा आ गया। नहीं, आपको दुनिया न्यूज की सबसे अच्छी बात क्या लगी? लो भाई, जो सबसे अच्छी बात लगी है ना, जुनैद मियां गुस्सा ना करना भाई मेरी बात का, मैं बोलता हूँ सच, समझ लो ना। जो बात दुनिया चैनल की मुझे सबसे अच्छी लगी है ना, वही बुरी भी लगी है भाई। अंदाजा करो यार, क्या ऐसा मतलब? अच्छा भी और मैं। अच्छा। मैं इतनी इंटेलिजेंट हो गई। वो ठीक है, ठीक है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बताएं अच्छी क्या बात लगी? भाई ठहर तो जाओ, बात तो करने दिया। अच्छा अच्छा। मैं बड़ी बारीक बीनी से देख रहा था टीवी। अच्छा, ये जो आप लोग ये जो अपनी खबरों में, खबरनामे में सनसनी पैदा नहीं ना करते, वो ढस धुम था नहीं हो रहा होता। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, जो खबर है सच सच वो बता दी, ठीक बहुत है। अच्छी बात है। तो बुरी क्या बात लगती है? और यही बुरी भी लगती है हैं? भाई, मुझ जैसे छिछोरे को मजा नहीं आता। मजा नहीं आता, माफ करना, माफ करना, माफ करना, गुस्सा ना करना भाई। आप तो सच बोल रहे हैं नाजिर साहब। अच्छा ये बताइए, आपको कितने नंबर की ऐनक लगी हुई है? ये 32 इंच की ऐनक है भाई। अब माफ कीजिएगा, ये ऐनक नहीं है, तौहीन ना करें इसकी, ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा। प्लाज्मा? ये ऐनक का प्लाज्मा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ, और ये कब से लगी हुई है? अब बिल्कुल छोटी होती थी जब लगी थी, मुंह भी बड़ी हो गई है। अब जरा थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्यों? साफ करने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, उतार के नीचे रखता हूँ फर्श पे, 2 बच्चे एक शीशे में चढ़ जाते हैं, 2 बच्चे वाइपर लेके दूसरे शीशे में चढ़ जाते हैं, वो भी साफ करते हैं अच्छी तरह। फिर 2-3 बंदे लगा कर मुंह पे रख लेता हूँ, या कभी जल्दी हो तो पेट्रोल पंप पे भी साफ करवा देता हूँ। मजा नहीं आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। और पेट्रोल पंप पे जाओ तो पता चले ना कैसे सुनती है। अच्छा मलिक साहब, ये फरमाया, आपको दुनिया न्यूज का सबसे अच्छा प्रोग्राम कौन सा लगता है? वो वाला प्रोग्राम वो जो वो लड़का करता है, मुबश्शिर लुकमान, वो खरी बात वाला। खरी बात तो हर कम ही होती है, बखरी बात ही होती है। अजीब सी बात निकाल के ले आता है, और इतने गुस्से में भाई, इतने गुस्से में मुझे तो वो केमिस्ट्री का प्रोफेसर लगता है। हर वक्त जिसके दिमाग को सल्फ्यूरिक एसिड ही चढ़ा होता, फार्मूले सुनते हुए हर बच्चे को फैंटी लगा देते हैं। जिसको फार्मूला ना आए उसको तो फैंटी लगाते ही हैं, जिसको आ जाए उसको भी फैंटी लगा देते हैं। तो मेरे होते हुए तुम क्यों सुना रहे हो? तो मैं किस बात का टीचर हूँ? बहुत कड़वा आदमी है भाई। अच्छा, लेकिन वो प्रोग्राम तो बहुत अच्छा करते हैं ना। अच्छा है तो बता रहा हूँ भाई, अच्छा है तो बता रहा हूँ। मेरे साथ वो कैरम बोर्ड तो नहीं खेलता रहा, अच्छा तो बता रहा हूँ ना। अच्छा ये बताइए मलिक साहब, अब आपको हस्बे हाल कैसा लगता है? कौन सा हस्बे? हस्बे हाल? वो कौन सा? हस्बे हाल नहीं आप देखते? कौन सा? वो जो यहाँ एक अजीजी बैठा होता है, वो एक बुजुर्ग आदमी साथ उसके बैठा होता है, वो एंकर जो है, और वो लड़का बहुत बैठा स्मार्ट होता खूबसूरत सा एक एंकर बैठा होता है। है। इधर बैठा होता है, वो गैलस नहीं, लगा के बड़ा स्मार्ट एंकर सा बड़ा है। स्मार्ट और खूबसूरत होता है उसके हाँ, साथ बैठा। वही बता रहा हूँ, जिसने गैलस भी लगाया होता है। नहीं, उधर तो एक बुजुर्ग बैठे होते हैं ना, बड़े से मुंह वाले। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो उस प्रोग्राम के एंकर है, स्मार्ट सा। ये किस प्रोग्राम में बात कर रहे हो? हस्बे हाल की। हंसी याद आया, लड़की
बैठी होती है। हाँ बिल्कुल, हंस वो कैसा लगता है आपको? वो अच्छा लगता है भाई, अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा लगता है, यकीन मानो अच्छा लगता है। अच्छा, उसमें सबसे अच्छी चीज क्या आपको लगती है? वो जो इधर लड़का बैठा होता है ना, वो गैलस वाला, वो जब अपनी बेगम के मजालम सुनाता है ना, यकीन करो मुझे इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी आती है। मैं सोचता हूँ यार देखो, ये लोग इतना ही बीवी से डरते हैं, इतना ही बीवी से डरते हैं जितना मैं डरता हूँ। बहुत मुझे हंसी आती है, आंख भी भर आती है कभी कभी, आंख भर आती है, सही पूछो तो आंख भर आती है यार, बड़ा जुल्म हो रहा है इस दुनिया में, बड़ा जुल्म हो रहा है। इसका मतलब है आप भी अपनी बीवी से डरते हैं? मैं कब डरता हूँ, मुझे सुनो ना, मैं नहीं डरता बीवी से। अभी तो आपने कहा है। वह क्या बताऊँ तुम्हें, मैंने तो दीवार पे कोड़ा लटका रखा घर में। अच्छा, नो 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 नो, मेरा वो हिसाब नहीं है जो उस बंदे का, नो नो। तो कोड़ा क्यों लटकाया हुआ है फिर आपने? वो बीवी की सहूलत के लिए, अच्छा, वरना बेचारी 4 पैर के नीचे से जूता ढूंढती फिरती है। मैं कहता हूँ जूता भी चमड़े का, कोड़ा भी चमड़े का, क्यों तकलीफ कर रही हो, ये पकड़ो और शुरू हो जाओ। तो फिर आप में और उस अजीजी में क्या फर्क है? वो चरिया मान जाता है, मैं नहीं मानता। अच्छा, बस यही फर्क है। और नहीं, वैसे एक और फर्क और भी है। वो क्या? वो तो घंटा इधर आके निकाल लेता है, मैं सारा दिन घर होता हूँ, क्योंकि टीवी देखना होता है, मैंने तो टीवी देखना होता है। मजा आया, मजा आया। अच्छा मलिक साहब, आज भी उसी तरह लड़ाई होती है आपकी और आपकी अहलिया की, जो चैनल तब्दील करने पे आप न्यूज चैनल देखना चाहते हैं और बीवी आपकी कहती है नहीं मैंने ड्रामा देखना है? हाँ, ये बात तो तुम्हारी ठीक है। वो ड्रामा देखना चाहती है, मैं खबरें सुननी चाहता हूँ। मगर जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए, सॉरी के साथ, मानी मेरी जाती है भाई। अच्छा। हाँ, मुझे जब गुस्सा पीक पे आता है ना, पीक पे फेंकता हूँ मैं रिमोट उसके आगे। अच्छा, कहा तो ले देख ले, फिर तू ड्रामा देख ले। फिर वो देख लेती है। अच्छा मलिक साहब, क्रॉस फायर भी देखते हैं आप? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मेहर प्रोग्राम। बुखारी वाला। और मेहर बुखारी बहुत अच्छा प्रोग्राम करती है भाई, वो क्रॉस फायर, खूब क्रॉस फायरिंग करती है भाई। वाह वाह वाह। अब तो सुना उसकी शादी हो गई है। हाँ, काशिफ अब्बासी के साथ, वो भी एंकर है। जो एंकर है, अब उसको कहो भाई, मेरे भाई को कहो नाम बदल ले प्रोग्राम का। अब क्रॉस फायर नहीं, अब स्ट्रेट फायर होना चाहिए, क्योंकि घरों में तो स्ट्रेट फायर ही होता है। बहुत अच्छा प्रोग्राम। अच्छा, इन सेशन के बारे में आसमा चौधरी का? वो जो आसमा चौधरी करती है इन सेशन, और उसका भी नाम बदल दो, कंसेशन रख लो, इन सेशन नहीं सूट करता, क्योंकि वो लड़की तो किसी को भी कंसेशन नहीं करती भाई। वो तो नून लीग बैठी हो, पीपल्स पार्टी बैठी हो, काब लीग बैठी हो, सबको धड़ाधड़ स्टेट सवाल कर रही होती है। आज जो देखा पीएम को कितने सवाल किया भाई। बिल्कुल अच्छा चले बताइए, पॉलिसी मैटर्स। वो जो नसीम दौरा करती हैं, वो क्या कहने उस खातून के, ऐसी मंजी हुई गुफ्तगू कर रही होती है। वैसे माफ करने, वो पॉलिसी मैटर का नाम भी बदल दो। हाँ? उसका नाम भी पॉलिसी मीटर रख दो। ऐसी वो पॉलिसी बात करती हैं कि बंदा मीटर हो जाता है। ये क्या कह रही भाई? मजा नहीं आया होगा लाल मला आया होगा। पॉलिसी मीटर जो किया मैंने, मजा तो आया होगा भाई। लो भाई, अगर नामों की तब्दीली की बात चली निकली है तो ये भी कहता चलूं, वो हस्बे हाल का नाम भी तब्दील कर रहा है। ओ खुदा का वास्ता, क्यों? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, मैं बड़ा डबल माइंडेड रहता हूँ। क्यों? वो इधर बैठा होता है जो बड़े मुंह वाला, वो कभी नाच रहा होता है, कभी गा रहा होता है। अगर मैं उसको देखूं तो मेरे जहन में आता है कि नाम होना चाहिए प्रोग्राम का हस्बे सुरताल। ऊपर से इतना भद्दा नाच रहा होता है वो, और तबीयत उसकी बिल्कुल फिल्म स्टार ज़ुमरुद खान वाली बनी होती है। बंदा मुझे भाई टिक के बैठ गया, तू अपनी उम्र देख और अपने लक्षण देख। हम भी उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता। और जो इधर बैठा होता है एंकर, वो तुम्हारे वाली सीट पे, वो जो घर से बेचारा पूरा मुल्क मुरम्मत करने निकला हुआ है, उसकी गुफ्तगू सुनता हूँ, उसकी परेशानियां सुनता हूँ, तो मेरे जहन में आता है कि प्रोग्राम का नाम होना चाहिए हस्बे जंजाल। और जो इधर लड़की बैठी होती है बेचारी, वो जो हंस हंस के पागल हो रही होती है, उसकी हालत देखे तो मुझे लगता है कि प्रोग्राम का नाम होना चाहिए हस्बे निहाल। वो बहुत हंसती है, वो बहुत हंसती है। 3 दिन सीएनजी बंद हो जाती है, उसकी हंसी नहीं बंद होती है। मजा आया होगा। ये लगाओ, मजा आया होगा। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये आज करो।